Okay, so hi everyone, how are you all? Fine, good, relaxed, tension, comfortable, easy हो? डर तो नहीं लग रहा है? कहाँ आ गए? कहाँ बुला लिया? Okay, so guys, a very warm welcome to each one of you, all our brilliant minds who have gathered here today. And you know, do you know why we all have gathered here? Any idea? No? So guys, today, we have gathered here to celebrate knowledge, curiosity, and sense of healthy competition. Okay. Now here we have students who were winners of our, quiz competition that held on Youth Skills Day last month. And we have participants as well who were courageous enough to take that quiz, challenging and thrilling quiz. As well as we have our students from GL Bajaj Institute of Management and Technology and their faculty member, Dr. Sanjeev Kumar Chauhan. Can we give a round of applause to everyone? Okay guys, first things first, I would like to congratulate all the winners who stood, victorious in a thrilling and challenging contest. And throughout, that competition, you have displayed and demonstrated your not only your expertise in various subjects, but also your high skill enhancement as well as the way you manage that pressure. Yes? Yes or no? Okay. Now, I would also like to acknowledge all the members who were involved in the quiz. Because of them, it was, an encouraging experience, an enriching experience for all of us. Now, guys, because तुम लोग मुझे ऐसे इतने डरे हुए चेहरों से ऐसे देख रहे हो, so इससे पहले कि मैं और कुछ बोलूं, let me give a very brief introduction of myself. Yes, so that you don't treat me any more stranger, right? We can be friends. Yes. Okay. So my name is Vaishnavi. I carry a total experience of more than 5 years. And I am associated with cloud analogy here for more than, I would say, almost a year now. And I'm working here as a learning and development specialist in the L&D team. And do you want to know my hobbies also? No? I like to interact with people. Yes, like I'm doing with you all. Let's not go more deep into what and who I am, and let's talk about the agenda of today's meetup. Okay? So, आप लोगों को कोई clue नहीं है, मैं बता देती हूँ. It is a student meetup wherein we will have an overview of the company whose name is Cloud Analogy, as well as an initiative by Cloud Analogy, which is Learnox. Yes, we will talk about our leaders of Learnox and our speaker, Mr. Arun Goyal, who will be, taking you through the Salesforce Cloud, certain job opportunities, job profiles, and so on and so forth. Yes? And guys, whenever you have any question, any doubt, any query, you should feel free to raise it up in the Q&A round that we will have at the end of the session. Now, this implies to both people who have joined virtually as well as people who are sitting here and joined us physically, right? So, if you have any questions, feel free to ask them to the concerned person. If you feel I am the right person to answer, you can reach out to me. If you feel a speaker, Mr. Arun, he is the right person to answer that query, you may reach out to him. Yes? Okay. Shall we proceed? Yes? Can we all smile and give a thumbs up? Yes? Done? Perfect. Chalo ji. Okay guys. So, अभी तक पता चल गया कहाँ पे आए हैं? Cloud Analogy, right? So guys, I'll just give you a very brief of what Cloud Analogy is and what does it do. So, Cloud Analogy, it deals with CRM services. So, it provides CRM-based services to its clients or customers. To name few technology, on whom our CRM experts work on are Salesforce, HubSpot, Zoho, etc.
Right. Now, guys, this organization started off in 2015. And the CEO and founder of this organization is Mr. Ajay Dubedi. He has a total experience of more than 10 years and has worked in, a couple of different MNCs. But he always had this vision of starting his own business, and that is why he started Cloud Analogy back in 2015. And when he started, there were just, 4 to 5 to 10 to 13 members who were the strong pillars of this organization to lay the foundation of this company. And today, to quote the number, we have more than 800 plus members. So it means that we have expanded and grown in number. Okay, guys. So what did I just say? Cloud Analogy, what does it deal in? CRM services. Can you name few technologies? Salesforce, HubSpot, Zoho, right? Okay. So guys, as rightly mentioned, that we started off with just 10 to 13 members into place, and now as you can see, we have more than 800 plus team members, and out of which 350 plus are CRM experts. Now, when I say 350 plus CRM experts, I mean that these 350 plus people have certifications in CRM services, right? Now we operate in 6 different locations in India, to name Kurukshetra, Lucknow, Bangalore, Dehradun, Mohali and Noida. As well as we have 4 global presence across the seas also, right? Now, how many of you know about Google Play Store? Everyone, right? Apps हम download वहीं से करते हैं. So likewise, हमारे जो certified Salesforce professionals, SCRM experts हैं, उन्होंने ऐसे ही एक Salesforce app exchange create की, जिसपे उन्होंने 7 different types of apps launch किए. So we have 7 apps which are listed on Salesforce App Exchange as well, right? Okay. Moving ahead to the company timeline. Now, who will tell me when did this company started off? देखते कितने active listeners थे. 2015. Brilliant minds यार, है ना? Yes. So it started in 2015, and when it started, we were just 10 to 12 to 13 members handling 5 plus projects. But through the years, as the years passed by, you can see how we expanded in terms of team members as well as in terms of handling projects. Yes? गलत नहीं कर रही हूँ? No. गलत नहीं बता रही हूँ? पक्का? So guys, if you can see in 2016, after receiving appreciation from clients, we were a team of 30 plus members handling 20 plus projects. In 2017, we were a team of 40 plus members handling 60 plus projects. And this was the year when Pentax, which is one of the apps on Salesforce App Exchange, which was launched. In 2018, the same Pentax app was awarded as Demo Jam winner as well. In 2019, we were a team of 160 plus members handling 150 plus projects. And what happened back then in 2020? Can anyone tell me? 2020 में क्या हुआ था यार ऐसा? कोविड पैंडेमिक, आराम से हम लोग अपनी मस्त लाइफ जी रहे थे, and out of nowhere this pandemic hit us, and what happened? Lockdown, कहीं जाना आना बंद, खाना पीना बंद, है ना? और क्या हुआ फिर? Restrictions, घर में बैठे हुए थे. People were laying off employees from their company. People were cutting their salaries off, not giving them the entire, handsome amount of salary that they deserve. While on the other hand, Cloud Analogy was expanding and growing in terms of both team members as well as handling projects. So that is vividly, mentioned here that we were a team of 300 plus members in 2021. We have more offices open. So we were offices were opened in Mohali as well as Bangalore. And then in 2022, when we were a team of 800 plus members handling 300 plus projects, it was that time when we incepted LearnOps. Any idea of what is LearnOps?
Have you ever heard what is LearnOps? Upskilling platform? Absolutely yes. Anyone else? Guys from the back? Any idea what is LearnOps? वो देखो वहाँ पे स्लोगन लिखा है, Learn today, lead tomorrow. Yes, smart guy. So the slogan itself says, learn today and so that you can lead tomorrow. Yes. So when did it started? LearnOps 22, and we are in 2023. So guys, I'll just give you a very brief history of LearnOps. कि शुरू कैसे हुआ और शुरू क्यों हुआ? So you all are college going students pursuing your graduation or post graduation. Yes. अब यार I was not as fortunate as you guys, to be very true. हमें कोई गाइड करने वाला बताने वाला नहीं था. जो इंटरेस्ट था, जो पैशन था, जो समझ आई वो कर लिया, है ना? आप लोगों के टाइम में the world has evolved so much. There are so many technologies evolving and there are so many people and platforms to guide you. Yes. So one such platform which was initiated by Cloud Analogy is LearnOps. So initially, when we started off, what we used to do is we used to upskill and train the freshers who would join Cloud Analogy. जो हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन को क्लाउड एनालिटी को फ्रेशर्स ज्वाइन करते थे, हम उन्हीं को अपस्किल और रीस्किल करते थे ऑन सर्टेन टेक्निकल स्किल्स एज वेल एज सॉफ्ट स्किल्स एंड बिहेवियरल स्किल्स. तुम लोग ने किसी ने पूछा नहीं कि तुम क्या करती हो, एलएनडी स्पेशलिस्ट क्या होता है? So yes, I am also part of LearnOps. I am responsible for all the soft skills and technical skills. Do you understand what are hard skills or technical skills and soft skills? Can you name me a few? कोई भी बता दो. Absolutely. Technical में जैसे Salesforce, machine learning, artificial intelligence, yes, data science, Python, C++, Java, and so on and so forth. Yes? Absolutely. So guys, we started off like this. Okay. Now, we are also involved in hiring. Recruitment team is there. We are also involved in hiring as well. Now, when we used to go to certain colleges and universities, we found out that the academic curriculum is different from what the industry needs. Yes, do you guys agree? Yes. हमें जो पढ़ाया जाता है क्या हमें आगे जाके जब हमें जॉब चाहिए होती है क्या वही सेम स्किल सेट मांगते हैं? No. कोई to be very true, let's we all are adults. सच्ची बताओ क्या कोई भी हमारा 10th 12th BSc MSc का BCom MCom का कोई मांगता है हाँ भाई कितने परसेंटेज थे? नहीं. All everyone wants is skills. Yes, absolutely. Now, LearnOps is one such platform where, we transform high potential aspirants into industry-ready professionals. How? By training them, by highly engaged, hands-on training experience as well as industry use cases. So, जैसे आप देख सकते हो ये केबिन. So, this is dedicated place for LearnOps people, right? Now, people who join us as freshers in Cloud Analogy as well as people in the entire world, whoever wants to join, whether he's a student, whether he's a working professional, whether he's a working professional in Cloud Analogy or in some other organization, he or she is free to come to us, get enrolled in LearnOps and get upskilled and reskilled by certain technical trainers as well as soft skills and behavioral trainers, right? Yes. तो अभी नो ऐसा तो नहीं जीरो आइडिया व्हाट इज LearnOps? नहीं. और कितना सही है ना यार, मेरे टाइम पे होता मैंने पक्का सीख लेना था. अभी तुम लोग कहोगे अब तो तुम बुढ़ी हो गई हो. नहीं, अब वैष्णवी टाइम चला गया, कोई बात नहीं, अब अगले जन्म में देखेंगे. बट नॉट फॉर यू गाइस यार, अभी यू आर ऑल यंग, वेरी यंग, एंड इट इज द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री. एंड एक चीज मैं जो शेयर करना चाहूंगी, even I have been working now for more than 5 years. Even I am pursuing MBA now because industry demand. Pursuing MBA in data science and analytics. Going help for Python and data science, data analytics to Vineet sir or Harsh sir.
who are the technical trainers here, right? So guys, देखो एडवांसमेंट होती रहेगी, टेक्नोलॉजी आती रहेगी, हमें अपने आप को अपस्किल और रीस्किल करना है ताकि हम इंडस्ट्री रेडी हो जाए, क्योंकि डिग्री तो यार सच्ची कोई नहीं पूछता. Skills, communication skills, how you present yourself, how good are you at your skills, that is what lands you a successful job opportunity. Yes. Now, वहाँ पर मैं विनीत सर, हर्ष सर ऐसे कुछ बोल रही हूँ. कौन है? Can you identify here in the room? Where are you? So guys, we have Vineet sir. So Vineet Kumar, he has a total experience of around 23 years. My God, that is huge, no? 23 years. And he has his expertise in Salesforce, Python, C, Oracle, and so on and so forth. He is the director, the person behind LearnOps. Yes. And as well as to his support, we have Harshvardhan and Mohit sir as well. Harsh sir, who has a total experience of around 18 years, my God. And you know, they're so strong in their technical skills. Matlab, literally, I have trained myself 2 batches. Till now, 2 batches of LearnOps. And people have, you know, they have got placement even as a fresher and, you know, as before the amount of 6 lakhs to begin with. And they were being trained by our trainers only. So you can understand how wide their skill set and expertise is in, right? Okay. Now, who is our speaker today? याद है मैंने एक बार नाम लिया था. हाँ, अभी तो नाम आ गया ना. कहाँ है? Absolutely. So guys, our speaker for today is Mr. Arun Goyal. Now, ये भी बहुत advanced. Why? Highly skilled and highly proficient customer success manager, and you know, he is one such highly result-oriented CRM geek who is responsible for maintaining client relationships, driving success, and as well as managing all the CRM, you know, system views. He has, to be very true, he has a huge amount of certifications under his name. Guess कर सकते हो? Guess करो कितने certifications होंगे? कितने कर लेते होंगे? Salesforce में 1, 2, 10. और मेहनत लगती है यार, ऐसे नहीं हो जाते हैं. क्या लगता है? Guess करना है, random guess. So guys, his certifications are his achievements, and there are 20 in number. So he's a highly skilled person. His expertise lies in Sales Cloud, Salesforce CPQ, Einstein, analytics, project management, market research and analysis, so on and so forth. The world never ends for him. He's always, upskilling himself. Yes. So these are the certifications that I'm talking about. Doesn't look good? Doesn't you want these certifications? यार मैं भी ये 2-4 चीजें फिर अपनी LinkedIn प्रोफाइल पे लगाऊंगी. Yes, I do want. So guys, now we will talk about what Salesforce is, how many Salesforce Cloud are there, what are the different job opportunities, job profiles that you may land in Salesforce, and all those will be taken care by our speaker of the day, who is Mr. Arun Goyal. And as mentioned earlier, we will have a Q&A round at the end of the session, wherein you all can address whichever query, whatever query that you have. And for the people who have joined us virtually, I request you to please drop in your queries in the chat box, or you may use, the hand raise option and jot down all your queries with yourself. We will address and acknowledge all of them at the end of the session. Yes? Perfect. Can we have a thumbs up and a smile? Pakka? Chal. Over to you, Mr. Arun. Thank you very much. And thank you all for your. So already Vaishnavi has been reflected on all the things, okay, who I am. Just to give you the background. So it's been 13 years for me in the IT industry.
And being a Java developer, it was really tough to get into Salesforce. So I started my job in 2010 on as a Java normal. तो आप लोग कितने लोग Java सीख रहे हैं अभी, या कितने लोग हैं अभी जो 4th year पास आउट हो चुके हैं? और ये भी फाइनल ईयर पास आउट हो चुके हैं। और अभी सब लोग यहाँ दिल्ली एनसीआर नहीं है, बहुत दूर से कोई आया है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली का तो अभी कितने लोग हैं जो फाइनल ईयर में हैं यहाँ पे? एमसीए 3rd ईयर या बीटेक 4th ईयर? आप लोग कब लोग? एमसीए 1st ईयर। 3rd ईयर में, 2nd ईयर में कौन-कौन है? एमसीए 2nd ईयर, बीटेक 3rd ईयर? So आप लोग जो है अभी फाइनल ईयर में, राइट? So you already learned Java, like Python भी अभी कोर्स में आ गया, हमारे टाइम में नहीं होता था, पर अभी Java is there, right? तो कैसा लग रहा है Java आप लोग को? और Java एडवांस कितना पढ़ा है? Python कर रहे हैं। And हमारे में फर्स्ट ईयर है, और तो C स्टार्ट हो गया होगा आप लोग का? Java भी। So they are almost in final. अभी तो हमारे में 3 years हो गए। So sorry, मेरे को personal story में they are preparing for that. Okay, so I've done my BTech from UPT, और now तो भी नाम चेंज हो गया है, अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी हो गया है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी। So 2010 में I got my first job in Java development only, and 3 years तक मैंने Java पे काम किया with Ajay Trivedi only. So we were fortunate enough, we have got good bonding on that time. So उसी टाइम पे हम लोग पे Salesforce का भी काम आया, right? So we started our journey in Salesforce from that 11 or 12, but कोई था नहीं बताने के लिए। अभी I'll show you some materials also there, okay, from the Salesforce only. और बहुत सारे ब्लॉग्स हैं या बहुत सारे लोग हैं जो आपको बता सकते हैं, but उस टाइम पे Salesforce was very much new, nobody was aware. Okay guys, so Salesforce जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो that was very surprising for factor for me at least, क्योंकि आप अगर कोई भी डेवलपर आप डाटाबेस देखते हो या आपको सेटअप करना होता है प्रोजेक्ट, राइट? आपको बहुत सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्रिएट करने होते हैं, आपको सेटअप कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, बट Salesforce में ऐसा कुछ भी नहीं था। आपके पास Salesforce आया, पहले दिन से कोड स्टार्ट कर दिया आपने, इवन यू कैन सी द रिजल्ट इन अ सेम डे। ओके, Salesforce में गाइस सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको थोड़ा इजीनेस है टू गेट द जॉब, ठीक है? एंड वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशंस है। जावा में आप लोगों ने डेवलपर ही सुना होगा, जावा एडमिन किसी ने सुना है? जावा एडमिन, एनीबॉडी हर्ड अबाउट जावा एडमिन? .NET एडमिन नहीं सुना है, राइट? बट Salesforce में ऐसा है, Salesforce में बहुत सारी चीजें होती हैं, आप पॉइंट एंड क्लिक से कर सकते हो। व्हेन आई से पॉइंट एंड क्लिक, आप लोगों ने बहुत सारे, जैसे इंस्टा यूज करते हैं सब लोग, इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं सब लोग, राइट? तो आप, अच्छा जो लोग बनाते हैं, ठीक है, तो आप रील्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो ना, बैनर्स, लोगोज, तो Salesforce में बहुत सारे ऑटोमेशन हो जाते हैं जो कि आप प्लग एंड प्ले कर सकते हो, आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव अ स्मार्ट आइडिया, इफ यू हैव अ गुड एप्टीट्यूड स्किल्स, ओके, सो आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, वो कोड आपके पीछे किसी ने लिखा हुआ है, बट आपको फ्रंट एंड पे दिखाई दे रहा है, आप उसको ड्रैग ड्रॉप करके करा सकते हो, और बहुत सारे फीचर्स हैं ऐसे। सो एडमिन इज वन जॉब इन वन डायमेंशन, ओके, डेवलपर आप बन सकते हो, उसके बाद फिर आप BA बन सकते हो Salesforce में। इफ यू आर हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल और आपके पास अच्छा आइडिया है, या मे बी आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है फॉर द इंडस्ट्री स्पेसिफिक। बहुत सारे लोग के घर में बिजनेस हो रहा होगा आज की डेट में, राइट? मे बी मॉम डैड कर रहे होंगे, भाई कर रहा होगा। सो शुरू से देखते हुए आते हैं आप लोग के, कोई मेडिकल लाइन में है, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, तो यू डू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, मे बी नोबडी अदर विल बी हैविंग दैट वन। सो आपके पास वो सेंस है, आप BA का रोल भी ले सकते हैं इफ यू हैविंग अ गुड स्किल कम्युनिकेशन, राइट? सो तीन डायमेंशंस हैं यहाँ पे गाइस, ठीक है? नाउ Salesforce पॉपुलर है, बहुत सारे CRM है, राइट? सो पहले मेरे को कोई बताएगा CRM से क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट इज CRM? क्या होता है CRM? आपने सुन लिया, ठीक है, प्रैक्टिकली बताइए क्या है CRM, बताइए। CRM we are using, and sir, in that CRM sir we are using for the leads, on how much time the leads has been called or follow up. ठीक है, so that is you are using for marketing purpose. तो ठीक है, CRM का मतलब सबको पता है डेफिनेशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, मैनेजमेंट, ठीक है? तो Salesforce ने जो स्टार्ट किया था, अब देखो दुनिया में दो ही चीजें होती हैं, सेल्स या सर्विस। कोई भी आप काम कर रहे हो तो सेल्स कर रहे हो या सर्विस कर रहे हो, और कोई चीज, और मेरे को नहीं लगता इसी में फॉलो कर रहे होगा,
वर्टिकली आप देखोगे तो कुछ भी आप ले लीजिए। तो सेल्सफोर्स ने स्टार्ट किया था सेल्स क्लाउड और सर्विस क्लाउड से, ठीक है। द आइडिया बिहाइंड दैट कि आपने कस्टमर्स को क्या करा, सेल किया कोई मोबाइल, राइट, मोबाइल की बात करता हूं मैं। तो आपने मोबाइल सेल किया, उसका आपने डिटेल ले लिया, आपका नेम ले लिया, बर्थडे ले लिया और बाकी डिटेल, होम एड्रेस ले लिया उसका, राइट, और अगर वो मैरिड है तो उसका एनिवर्सरी डेट ले लिया, वॉट एवर द डेटा यू कैन कलेक्ट, राइट। तो आपके पास एक डेटाबेस में आपने एंट्री डाल दी, ठीक है। उसके बाद अभी क्या होता था, उससे पहले सेल्सफोर्स से पहले सीआरएम थे, बट वो खाली या तो सेल्स क्लाउड करता था या सर्विस क्लाउड, अलग अलग थे, ठीक है, डेटाबेस ही अलग अलग थे। आपने एक डेटाबेस में एंट्री डाला, अब आपको बंदे का कॉल आया, आप उसको कुछ आपने वारंटी दी हुई है, लेट्स सपोज 1 ईयर की वारंटी दी हुई है, ठीक है। तो दूसरे लाइसेंस लेना पड़ता था उसको, सर्विस, उसको अगर डेटा सर्च करना होगा किसी, लेट्स सपोज मैं कॉल सेंटर में बैठा हूं, मेरे को किसी ने कॉल किया है, तो मेरे को पता लगाना चाहिए कि पहले उसने मोबाइल लिया है कि नहीं लिया है, ठीक है, तभी तो मैं वारंटी का उसको दे पाऊंगा। उसने मेरे को कॉल किया, मेरा मोबाइल वारंटी में है। तो पहले क्या था, डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस हुआ करते थे, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम हुआ करते थे, उसके बीच में इंटीग्रेशन होता था, तो उसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता था, ठीक है। सेल्सफोर्स ने उसको इजी करने के लिए सेल्स और सर्विस क्लाउड साथ में लेके आए, उसके लाइसेंस अलग था बट स्टिल डेटाबेस वाज सेम। तो होता क्या था, आपने सेल्स जब किसी को कर दिया, डेटा आपके पास आ गया, फिर उसके बाद अगर सेल्स रैप को कोई कॉल कर रहा है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है विद द नेम ऑफ नंबर, विद द नेम ऑफ ईमेल, उसके लिए वो आप उसकी डिटेल लेके आ सकता है। तो सर्विस प्रोवाइड करना इजी है और उसको क्विक रिजोल्यूशन मिल रहा है, उसका उसमें टाइम वेस्ट कम हो रहा है। आप जैसे आजकल कस्टमर सपोर्ट पे लोग कॉल करते हैं, राइट, तो पहले आईवीआर का ऑप्शन नहीं हुआ करता था हमारे टाइम पे, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आईवीआर का ऑप्शन बहुत बाद में आया है। तो अभी तो सब लोग ऑटोमेटेड हो गए हैं, राइट, चैट भी ऑटोमेटेड हो गई, इवन आईवीआर पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन ऑटोमेटेड मिल जाते हैं। पहले हमारे टाइम पे 1 या 2 ऑप्शन हुआ करते थे खाली और आईवीआर के। तो ये सब कुछ इसी का पार्ट है, मतलब बाकी और सीआरएम भी है, बट सेल्सफोर्स आल्सो इवॉल्विंग ऑन दैट, ठीक है। तो सेल्सफोर्स के अलावा कौन कौन से सीआरएम पता है लोग आपको, गाइस, पता है कोई कुछ सीआरएम और सेल्सफोर्स के अलावा? बहुत सारे सीआरएम है ना, सेल्सफोर्स अकेला नहीं है ना मार्केट में, अकेला हो जाएगा तो वो तो भगवान बन जाएगा, फिर मोनोपोली हो जाएगी, सब उसी का करेंगे। किसी को पता है सीआरएम और कोई सुना है किसी ने? सॉरी, हाँ, माइक्रो डायनेमिक्स और HubSpot, हाँ। तो सारे सीआरएम का ना HubSpot में बेसिकली यूज होता है मिडिल ईयर कंपनी में, और बेसिकली मार्केटिंग के लिए, कैंपेन के लिए। अभी भी बहुत ज्यादा रोबस्ट नहीं है वो, मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है, बट अगर व्हेन इट कम्स फॉर द सेल्स एंड सर्विस अभी भी वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ पार्ट के लिए अलग, बस सेल्सफोर्स में क्या है, सेल्सफोर्स आपने लिया तो आप, सेल्सफोर्स ने क्या करा हुआ है बताऊंगा आगे मैं आपको। सेल्सफोर्स ने सारे वर्टिकल्स ही अलाइन कर दिए विद इन 10-15 ईयर्स। तो आपने एक लाइसेंस लिया, आपको डेटाबेस यूज चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप एक लाइसेंस लोगे आपको और चीजें मिल जाएंगी, एक लाइसेंस लोगे आपको और चीजें मिल जाएंगी। तो यू आर हैविंग योर सोर्स ऑफ ट्रुथ इज सेम, राइट, आपका डेटाबेस सेम है, आप सब कुछ उस पर प्ले कर सकते हो, आपको कम टाइम लगेगा, आपको फास्ट एंड रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। सो ये सबको पता है, सीआरएम सबने बताया, ठीक है। व्हाट इज सीआरएम? रिकॉर्ड कस्टमर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, कस्टमर का। उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, अभी मैंने एग्जांपल दिया नेम, ईमेल, बट और भी चीजें हो सकती है उसमें। ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइज मतलब आपने फॉर एन एग्जांपल आपने एक्सेल बनाया, जैसे पहले अभी भी लोग एक्सेल यूज करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज नहीं है, आपने अपना एक्सेल बना लिया, उसने अपना एक्सेल बना लिया, आपने मेरा नाम लिखा है अरुण गोयल, उसने लिखा है अरुण कुमार गोयल, लिख सकते हैं, राइट, बट ऑर्गेनाइज नहीं है। आप जब उसको मर्ज करोगे तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, बट ये क्या करता है, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ रखता है, जो डेटा है वो एक जगह पे ही है, या तो अरुण कुमार गोयल होगा या अरुण गोयल होगा, ठीक है। और इंप्रूव कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट मतलब जो मैंने एग्जांपल दिया आपको सर्विस क्लाउड का, सर्विस क्लाउड ना, सर्विस कर पा रहे हो, आपको कस्टमर को कब खुश रख पाते हो आप लोग? आप अगर कोई इश्यू आता है आपके पास, आप जाते हो सर्विस सेंटर, आप लोग तो कब खुश होते हो आप लोग? रिजॉल्व हो जाता है, जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। एक तो रिजॉल्व तो सभी कर ही देंगे, राइट। अब 1 महीना एक बंदा ले रहा है, एक बंदा 1 दिन में कर दे रहा है, तो आप उसी के पास नहीं जाओगे 1 महीने वाले के पास कभी भी, राइट, क्योंकि आपने जिस चीज के लिए मोबाइल लिया था आप 1 महीने तक वेट नहीं करोगे ना उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए इंप्रूव कर पा रहा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को, जिससे कि सेल्स भी बढ़ता है, ठीक है। सो दीज आर द डेफिनेशन व्हिच आई हैव टुक फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है, बट आप पढ़ सकते हो। इफेक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, द की ऑफ सक्सेस, एवरीबॉडी अवेयर ऑफ दैट। आप सेल्स सर्विस क्यों कर रहे हो? आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, एवरीबॉडी इज डूइंग देयर बिजनेस, ठीक है। कुछ भी कर रहे हो आपको, अगर आप सेल्स कर रहे हो तो आपको सेल्स ग्रो करना है, आपको सर्विस करना है तो सर्विस ग्रो करना है, राइट। तो अगेन
सेल्सफोर्स इनेबल बिजनेस टू सेंट्रलाइज कस्टमर डेटाबेस, तो सब जगह सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है, आपका डेटा एक जगह पे है, वहीं से आप सब कुछ ड्राइव कर रहे हो, ठीक है। फैसिलिटेट एफिशिएंट कोलैबोरेशन अमंग टीम्स, तो अब यहाँ पे एग्जांपल आता है सेल्स सर्विस का। सेल्स टीम अलग होती है, उनका फंडा रहता है क्लोज करने के लिए, सर्विस टीम अलग होती है, उनका फंडा होता है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर आपके पास सिस्टम एक है, ठीक है, डेटा एक जगह पे है, तो दोनों टीम के अंदर कोलैबोरेशन करना इजी है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप गए किसी के बंदे के पास सर्विस कराने अपना, उन्होंने बोला आपकी वारंटी तो है ही नहीं, बट उसके आपके पास डेटाबेस है, तो आप बोल सकते हो कि आप अपनी टीम के साथ जाइए, उनसे बात करिए, तो उनके लिए इजी है। विद इन अ सिस्टम दे कैन शेयर दैट रिकॉर्ड विद द सेल्स टीम एंड वो उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। सो ये बहुत सारे सीआरएम से गए, ठीक है। सेल्सफोर्स इज नॉट द ओनली वन, ऑब्वियसली इट्स द बिगेस्ट वन राइट नाउ, और अभी पॉपुलर वन है। बट जोहो अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो दैट जोहो का बताएगा कोई? जोहो किसी को सुना है? जोहो इज ओनली द सीआरएम इन द वर्ल्ड जो इंडिया से बेस्ड हुआ है। ही इज इंडियन फाउंडर, पढ़ना जाके इस बारे में, ठीक है। जोहो इज अगेन डूइंग गुड व्हेन इट्स कम फॉर द बिलिंग इनवॉइसेस, तो जोहो इज अगेन डूइंग देयर फुटस्टेप इन अक्रॉस द वर्ल्ड, और वो इंडियन कंपनी है, जोहो इज इंडियन कंपनी, तो लोगों ने फाउंडेड किया था उसको। अगेन दे आर डूइंग ग्रेट, राइट। तो जोहो, HubSpot, Monday.com, Oracle, NetSuite, Pipedrive, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। बट अगेन इन सब में से सेल्सफोर्स अगेन इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है? क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि बहुत ज्यादा इजी है यूज करने के लिए, बाकी सब में माइक्रो डायनेमिक्स में और बाकी सब में आपको थोड़ा सा इजी नहीं होगा करना, बंदे नहीं मिलेंगे, रिसोर्स नहीं मिलेंगे उन लोगों ने। फॉर एन एग्जाम्पल सेल्सफोर्स अपना बहुत सारा इन्वेस्ट करता है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने में, फ्री ट्रेनिंग, जैसे फ्री कोर्सेज हैं। फॉर एन एग्जाम्पल डिमांड एंड सप्लाई वाला खेल है, राइट। सेल्सफोर्स ने रिसोर्सेज इन सारे बना दिए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कि अगर कोई कंपनी चाहती है, लेट्स सपोज उसको एमएस डायनेमिक्स में जाना है, ठीक है, अब वो यूज करना चाहती है, वो बोलेगी मेरे को रिसोर्स लेके आओ, राइट, कोई तो इंप्लीमेंट करेगा, तो रिसोर्स ही नहीं मिलेंगे, रिसोर्स मिलेंगे तो वो बहुत कॉस्टली मिलेंगे, बहुत ज्यादा। पर सेल्सफोर्स ने क्या किया है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा बढ़ा दी है जस्ट फॉर द ट्रेनिंग। बहुत सारे प्रोग्राम है सेल्सफोर्स के, कॉलेज के प्रोग्राम्स अलग है, मेंटरशिप के, इवन बहुत सारे ट्रेडर्स के वेबिनार्स होते हैं एवरी वीकेंड, वीकडेज में भी होते हैं, तो सेल्सफोर्स वहां पे भी बहुत सारा काम करता है, ठीक है। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस क्लियरली, राइट। कहां पे है सेल्सफोर्स, और ये वन डे का सक्सेस नहीं है गाइस, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग 1999 में दे हैव फाउंडेड एंड दैट हैज बीन फेल्ड 2005-6 में, दैट हैज बीन गो डाउन, राइट। बट इन लोगों ने पूरा स्टडी चेंज किया अपना, देन 2009 से इन लोगों ने कभी मुड़ के नहीं देखा है पीछे, एंड एवरी ईयर दे आर एक्वायरिंग आई थिंक 5 to 10 कंपनीज एवरी ईयर। बट यू कैन सी द डिफरेंस, लाइक कहां पर है, कोई मतलब कोई मैच नहीं है। दीज आर द कंपनीज, ये कंपनीज ऐसा नहीं है कि सेल्सफोर्स यूज कर रही हैं, बट मेजोरिटी बल्क में सेल्सफोर्स यूज कर रहे हैं, राइट। अगर हो सकता है 70% सेल्सफोर्स यूज कर रहे हो, मे बी 20% वाला काम इनका बाकी HubSpot, CRM वगैरह पे हो रहा हो, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ द कंपनी जो मार्केट लीडर है अभी, जैसे आप देख रहे हैं Amazon इज अ B2C मार्केट लीडर, मैसी आप जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे शॉपर स्टॉप है यूएस में, मैसी है, ठीक है, और मे बी बिग बाजार से भी बहुत, शॉपर स्टॉप बहुत छोटा हो गया, मैसी का स्टोर यूएस में बहुत बड़े होते हैं, मतलब वो स्टोर लेते हैं पूरे 7-8 फ्लोर का लेते हैं पूरा। सो मैसी इज अगेन इन द यूएस मार्केट इज अ बिगेस्ट, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो सारे लोग यूज करते हैं, ठीक है। सेल्सफोर्स अगेन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उनको सेल्स के डेटा मिल रहे हैं अच्छे, उनकी सेल ज्यादा हो रही है, उनकी सर्विस अच्छी हो रही है, दैट्स द ओनली रीजन। ये इकोनॉमी है गाइस, ठीक है। सो दिस डेटा इज टिल 2022 ओनली, बिकॉज अभी डेटा आएगा, फाइनेंशियल ईयर अभी जस्ट एंड हुआ है, सो दे विल बी पब्लिशिंग देयर न्यू रिपोर्ट। सो 3.3 मिलियन न्यू जॉब्स इन्होंने टिल 2022 दिसंबर तक इन्होंने ओरिजिनेट करी है इन द मार्केट, राइट, इन सेल्सफोर्स ओनली, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जीडीपी में इनका अच्छा खासा इंपैक्ट है, ठीक है। एंड ट्रेल हेड, आई टेल यू व्हाट इज द ट्रेल ब्लेजर, व्हाट इज द ट्रेल हेड। सो जो ट्रेल हेडर्स होते हैं, राइट, उसमें से 1 out of 4 विल बी गेटिंग अ जॉब, ठीक है। आई एक्सप्लेन कि क्या ट्रेल हेड है, ट्रेल ब्लेजर क्या है। और अभी 10 मिलियन ट्रेल ब्लेजर हैं, अभी तो इस साल तो और ज्यादा बढ़ गए होंगे, लास्ट ईयर 10 मिलियन ट्रेल ब्लेजर थे इन द मार्केट, ठीक है। सो जैसे आप लोग IITians बोलते हो, दिल्लीites बोलते हो,
तो Salesforce का जो लर्निंग सिस्टम है वी कॉल इट trailhead.salesforce.com, राइट? तो हम उसको ट्रेल ब्लेजर बोलते होते हैं. अगर आपने अपना अकाउंट बनाया यू विल बी कॉलिंग एज अ ट्रेल ब्लेजर. ठीक है, किसी ने सुना ट्रेलहेड के बारे में? आप लोगों ने सुना होगा. किसी ने सेल्सफोर्स के बारे में सुना था आज से पहले? ट्रेलहेड के बारे में सुना था? कोई प्रोग्राम हुआ है आपके यहाँ पे सेल्सफोर्स की तरफ से? नहीं. Again, this is a forecasting, right? By 2026, they are considering 52.1 का इनका ग्रोथ रेट है और 52 से 58 बिलियन का इनका कंसिडरेशन है. ठीक है, इन नेक्स्ट 3-4 years मार्केट शेयर्स में. सो दे आर कीप इवॉल्विंग. ठीक है, ऑन द मार्केट. जॉब अपॉर्चुनिटीज Salesforce.com खुद से बहुत सारे बंदे हायर करती है. इनका हेड ऑफिस हैदराबाद में है, नोएडा में नहीं है. ठीक है, तो Salesforce.com खुद से अगर आप यू आर वेल स्किल्ड, ओके, सो यू कैन गिव द इंटरव्यू, यू कैन गेट प्लेस्ड. दैट इज द वन थिंग. एंड बॉस, ये तो हमने 3-4 कंपनी लिखी. वी आल्सो हैविंग द अपॉर्चुनिटी इन क्लाउड टेक्नोलॉजी. So majority of the cloud technology work we started with the Salesforce, but right now we are doing HubSpot, we are doing Zoho, we are doing full stack as well. Python, React, Android, Java, सब चीजें करते हैं. बट हम लोगों ने स्टार्ट Salesforce से किया था और अभी भी 60-70% काम हमारा Salesforce में ही होता है थ्रू आउट द कंपनी. ठीक है. Now these are the job roles which I was talking about. So majority of the, जो अगर आप देखेंगे Salesforce आपने पढ़ा तो यू नीड टू चूज योर डायमेंशन, कि आपको इस डायमेंशन में जाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल Salesforce एडमिन में आप जा सकते हैं, Salesforce डेवलपर में आप जा सकते हैं. इसके बाद चालू होता है QA. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप आर्किटेक्ट पहले बन जाओगे. यू हैव टू बी अ डेवलपर पहले. आपने सुना, जैसे आपको कोई घर बनाता है, राइट? तो घर जो बनाता है मजदूर होता है, तो डेवलपर इस काइंड ऑफ मजदूर. उसको चीजें पता है, ईंट कहाँ रखना है, ठीक है, सीमेंट कितना डालना है. ठीक है, बट जो आपको ट्रेन करता है, जो उसके ऊपर वाला बंदा रहता है, वो बताता है कि इतना परसेंटेज में डालना है, राइट? मजदूर नहीं करता है वो काम. तो दैट विल कम फॉर द आर्किटेक्ट. बट क्योंकि वो काम कर चुका है, ऐसा नहीं हमने पहले दिन ही पता कर लिया होगा. डेवलपर वाला रोल वो कर चुका होगा, तभी उसके पास आर्किटेक्ट वाला रोल आया होगा. सो इट माइट टेक 3 year, 4 year, 5 year, मे बी 8 years, 9 years, डिपेंडिंग कि वॉट एवर द प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन, उसमें कितना कॉम्प्लेक्सिटी है. ठीक है, बट आप 5-6 years में नॉर्मल टाइम टू बी ए आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट में ही बहुत सारे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट डिफरेंट थिंग, एप्लीकेशन आर्किटेक्ट डिफरेंट थिंग, एंड टेक्निकल आर्किटेक्ट डिफरेंट थिंग. उसमें भी अलग अलग रोल आता है. इसके बाद Salesforce QA आता है. सो हु आर परसुइंग देयर कैरियर इन द QA, जिनको अच्छा लगता है QA करना, जिनको गलतियां निकालना अच्छा लगता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एडमिन वाला पार्ट आना चाहिए. अगर आपको Salesforce समझ में नहीं आएगा तो यू कैन नॉट कंटिन्यू विद द QA पार्ट. ठीक है, सो दैट इज अ प्रीरिक्विजिट. एडमिन हो गया, फिर यहाँ पे डेव होगा आपको. सेम विद द कंसल्टेंट. तो कंसल्ट सब लोग जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं. जनरल फिजिशियन तो सर्जन अलग होता है, फिजिशियन अलग होता है, राइट? कंसल्ट करने जाते हैं आपको कभी सर्जरी नहीं करेगा, आपको देखेगा, दवाई बता देगा. यही करता है ना? करता है कोई सर्जरी? जो झोला चाप छोड़ दो, MBBS वाली बात बहुत सारे लोग कर देते हैं. ठीक है, जिनके पास अच्छी डिग्री है या अच्छे हॉस्पिटल में आप जा रहे हो, कोई भी आपको नहीं करेगा सर्जरी, राइट? इफ दे आर जनरल फिजिशियन, आपकी देख के, वो तबियत देख के आपको जो इश्यूज है उसको मेडिसिन दे देंगे आपको, या आपको बता देंगे टेस्ट करा के, और फिर आपको बताएंगे इन्वेस्टिगेट करके, राइट? आप भी सही भी हो जाते हो उससे. तो कंसल्टेंट का भी सेम काम होता है. अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, मैं Salesforce में काम कर रहा हूँ, कोई इश्यू आया तो दे विल बी हायरिंग ए Salesforce कंसल्टेंट. वो उनको बताएगा देखो ये तरीके हैं जिनसे आप कर सकते हो प्रॉब्लम. वो करेगा नहीं, ही वोंट डू एनीथिंग, ही और शी. ही विल शो द पाथ कि ये 5 पॉइंट आप कर लीजिए, आपका हो जाएगा सही, या फिर इस बारे डेवलपर को आपको लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे इशू. ठीक है, तो कंसल्टेंट के लिए भी आपको एडमिन आना चाहिए गाइस. इफ यू डोंट नो द सिस्टम, यू कैन नॉट बी द कंसल्टेंट. कंसल्टेंट अगेन विल कम ऑन द सेकंड पाथ. ठीक है, लेवल 2. एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट. तो प्रोजेक्ट मैनेजर सबको पता है, वो तो फिर ऊपर वाला हो गया 9-10 साल के बाद में. ठीक है, एंड द सेम विद द BA आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. अगेन एडमिन का पार्ट आपको आना चाहिए. ठीक है, तो गाइज मेरे टाइम पे क्या था, मेरे टाइम पे एडमिन और डेव बिल्कुल अलग अलग थे. क्लाइंट वाज नॉट सपोज कि डेव को भी एडमिन आए पार्ट. ठीक है, बट अभी 3 साल चेंजिंग. अगर आप डेवलपर बन रहे हो तो आपको एडमिन की चीजें आनी चाहिए गाइज. पर ऐसा नहीं है कि आपको एडमिन पता ही नहीं है. 50, 60, 70% दे विल बी एक्सपेक्टिंग
कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब चीजें पुरानी हो जाती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, ठीक है। अगेन इसमें फर्दर डाउन आप कर सकते हो, आर्किटेक्ट के अंदर बहुत सारे और भी रोल होते हैं, ठीक है, बट ये मेजोरिटी ऑफ द रोल है जिसमें आप अपना जॉब ले सकते हो। बट एज अ फ्रेशर यू आई विल रिकमेंड कि एडमिनिस्ट्रेटर या डेवलपर ही आप जाओगे, ठीक है। सो दिस इज आई जस्ट वांटेड टू शो कि 81% पहले स्ट्रगल कर रहे थे सेल्सफोर्स से आने से पहले, बट अब अभी 71% स्ट्रगल हो रहा है किसी कंपनी में, तो 10% का डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, टू गेट अ गुड रिसोर्स। गाइस बोर हो गए क्या आप लोग? हाँ चलो, बोर हो गए तो एक काम करें, सब लोग खड़े हो जाते हैं, डू सम एक्सरसाइज। चलो, नींद आ गई होगी लगभग। चलो एक हाथ उठाइए गाइस अपना, दिस वन, अब दूसरा भी, डू सम एक्सरसाइज। डू कोई बात, ये नींद नहीं आएगी गाइस, हमें भी कराते हैं यार, हमारे टीएलएम में मिनिस्टर कराते हैं मेरे को ऐसे। ये कितना देर बैठ सकते हैं गाइस बताओ? हाँ बिठाया कभी स्कूल में टीचर ने सबको? यार अब तो अलाउड नहीं है ऐसा, आप लोग के टाइम पे था अलाउड, हमारे टाइम पे तो था, ठीक है। चलो गाइस, नाउ दिस इज हिस्ट्री, ठीक है। मार्क बेनियोफ was a he is a CEO of Salesforce, इन्होंने फाउंड किया है, ठीक है। So he was a senior management, he was in a senior management of the Oracle। ऐसा नहीं है ये कॉलेज से पास आउट हुए इन्होंने Salesforce बना दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। पहले आप काम करते हो किसी इंडस्ट्री में, आपको पता लगता है कि ये इंडस्ट्री का नीड है जो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो Oracle से इन्होंने बात करा था उस टाइम पे, जितना मैंने पढ़ा है, और Oracle was not convinced to get this product on board। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी छोड़ दिया और अपना प्रोडक्ट फाउंड किया 2-3 लोगों के साथ मिलकर, बट इज अ मेन नेम, तो अभी भी है, ठीक है, बट इज एन फाउंडर नॉट सीईओ रहा है, ठीक है। एंड ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। जैसे हम लोग का वेबिनार होता है, यूएस जाते हैं तो यू कैन मीट हिम एनी टाइम, अगर वो वहां पे हैं तो। ऐसा नहीं है कि 10-15 बॉडीगार्ड लेके जैसे इंडिया में होता है आप मिल नहीं सकते हो, ठीक है, वहां पे नहीं है ऐसा। नाउ सेल्सफोर्स का जो बिगेस्ट एडवांटेज है गाइस, जावा में, डॉटनेट में आपने काम किया है तो आप कैसे काम करते हो, आपके पास सिस्टम होता है राइट, डेस्कटॉप या लैपटॉप, राइट, आप कॉन्फ़िगर करते हो अपने लोकल पे। बट सेल्सफोर्स में ऐसा नहीं है, सेल्सफोर्स हैज बीन लॉन्च्ड एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सब लोग को पता है, जो आप लोग आजकल वेबसाइट यूज कर रहे हो दैट इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस दे हैव इंट्रोड्यूस, आपको कोडिंग भी वहीं पे करनी है, यू डोंट हैव एनी लोकल। उनके आप गूगल क्लाउड पे जाइए, वेब ब्राउजर में आप खोलो एंड यू विल गेट ए विंडो कि आपको क्या कोड करना है, एवरीथिंग विल बी सेव्ड ऑन द क्लाउड, और वहीं से आपका सर्विस चल रहा है, वहीं से आपका प्लेटफॉर्म चल रहा है, ठीक है। प्लेटफॉर्म सबको समझ में आता है, जावा का आप कोड करते हो, डॉटनेट का करते हो, पाइथन का करते हो, तो कैसे करते हो आप, आईडी को यूज करते हो, राइट, आपके लोकल पे रहता है, देन यू बी बिल्ड बनाते हो, उसको डिप्लॉय करते हो, करेक्ट, सर्वर पे। बट यहाँ पे सीधे सर्वर पे कोडिंग होती है आपकी। तो दैट वाज अ मतलब सबसे प्लस पॉइंट यही था, इसलिए सेल्सफोर्स बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इट विल बी हैविंग जीरो कॉस्ट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वंस यू विल हैव अ लैपटॉप दैट्स सफिशिएंट विद अ गुड कॉन्फ़िगरेशन। ऑब्वियसली इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके पास, दैट इज वन थिंग। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो नहीं कर पाओगे आप, दैट यू कैन डू विद जावा, ठीक है। बट अभी चीजें आ गई हैं, आप इंटरनेट की नहीं भी हो थोड़ा बहुत तभी भी कर सकते हो, बट डेवलपमेंट आप कर सकते हो, बट आपको स्टार्ट करना है स्टार्टिंग से, बिल्कुल इनिशियल जीरो से, तो आपको इंटरनेट चाहिए 99%, ठीक है, और आप सभी के पास तो इंटरनेट है। दीज आर द की फीचर, इजी सेटअप है, कुछ नहीं करना आपको। जैसे जावा में जैसे मैं अपनी बात करता हूं, तो जब हमने स्टार्ट किया, विनीत सर भी बताते हैं, स्टिल हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं जावा के, इट माइट टेक 3-4 डेज जस्ट फॉर कॉन्फ़िगरेशन, कुछ नहीं होता है उस दिन, 4 दिन लग जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए। किसी ने मैवन आंट वगैरह सुना है? मैवन आंट लाइब्रेरी डालनी है, ये डिपेंडेंसी फट गई, वो डिपेंडेंसी फट गई, सुना है कभी? पाइथन में आप लोगों का पहले दिन ही सेटअप हो जाता है सब चीज। जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे, एक्चुअल प्रोजेक्ट पे, ठीक है, तो बहुत सारे डिपेंडेंसीज होते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी डालने होते हैं, इट माइट टेक ए डे, 2 डे, 3 डेज, और अभी भी ऐसा होता है, ठीक है।
पर Salesforce में ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है ना? यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द जीरो डे, आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है और यू आर हैविंग ए गुड इंटरनेट कनेक्शन, उस दिन से, उस पॉइंट ऑफ मूवमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड यू कैन सी द प्रोडक्टिव रिजल्ट फ्रॉम द डेड फ्रॉम द सेम डे। वी डू हैव अ कस्टमर जो उन लोगों ने इंप्लीमेंटेशन किया है Salesforce का विद इन अ वीक, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज प्री बिल्ड देते हैं लोग। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका कितना कॉम्प्लेक्सिटी प्रोजेक्ट का है, कितना बिजनेस आपका कॉम्प्लेक्स है, उसके हिसाब से आपका टाइमलाइन बढ़ता जाता है। इफ यू वांटेड टू गो विद द रेडीमेड प्रोडक्ट जस्ट फॉर कॉन्फ़िगरेशन करना है, छोटा मोटा ऑटोमेशन करना है, यू कैन वेरी वेल गो लाइव विद द 7 days ओनली, ठीक है? सो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, हाईली कस्टमाइजेबल है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, हब स्पॉट बनाया या फॉर एग्जांपल विंडोज भी आप करते हो, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं विंडोज को भी कस्टमाइज कराती हैं, जैसे पीडब्ल्यू हो गया, एसेंचर हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो वो माइक्रोसॉफ्ट से बात करती है सीधे कि उनको विंडोज में ये फीचर ब्लॉक चाहिए। आप लोग अगर आपके कोई एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर होंगे, आपके अंकल आंटी या मॉम डैड होंगे, उनसे आप अगर कोई काम करते हो उनके लैपटॉप में बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हो, किसी कंपनी में कुछ ब्लॉक है, किसी कंपनी में कुछ ब्लॉक, ठीक है? तो सीधे सीधे माइक्रोसॉफ्ट से बात करके कस्टमाइज कराती है विंडोज को, ठीक है? तो सेम वे Salesforce इज हाईली कस्टमाइजेबल, जो भी इनका प्रोडक्ट आता है बाय डिफॉल्ट आप उसमें 1 से लेके 100 तक पूरा चेंज कर सकते हो, पूरा आपको पता ही नहीं लगेगा Salesforce है, ठीक है? एंड यूजर को नहीं पता लगेगा, आपको पता होगा आप काम कर रहे हो, क्योंकि एंड यूजर वोंट बी अवेयर कि आप Salesforce यूज किया है पीछे, ठीक है? और बाकी है अभी मैं बताऊंगा आपको, मार्केटिंग क्लाउड के लिए यूज हो सकता है, लीड नर्चरिंग के लिए, इसमें आप रिपोर्टिंग बहुत अच्छा कर सकते हो। किस किस लोगों ने रिपोर्टिंग के टूल सुने हैं? रिपोर्टिंग टूल सुने हैं सब लोगों ने? जो आपके हाई एंड यूजर होते हैं, सीईओ, सीएफओ, सीएक्सओ, वो जैसे लेट्स सपोज मेरा 5 लोगों की कंपनी है, तो हर एक बंदे के पास नहीं जाते ना, वो लोग रिपोर्ट देखते हैं, ग्रोथ रिपोर्ट देखते हैं, मार्जिन रिपोर्ट देखते हैं, रिसोर्सेज की रिपोर्ट देखते हैं, अवेलेबिलिटी देखते हैं, तो सब चीज रिपोर्ट पे रहता है, राइट? जैसे आपने आजकल देखा भी होगा पीयूष गोयल का या फिर मोदी जी का चलता रहता है, वो रिपोर्ट देखते हैं, बहुत सारा न्यूज में आता रहता है, दैट इज एवरीथिंग इन रिपोर्टिंग। जैसे आईआरसीटीसी अभी बीच में आया था 1 साल पहले, लोगों ने बहुत अच्छा सा डैशबोर्ड, या फिर कोविड की बात ले लेते हैं, covid.org में बहुत सारे लोगों ने लॉग इन किया होगा ना अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए, जो स्टार्टिंग में वैक्सीनेशन लग रहा था, तो उसमें आता था ना नीचे चार्ट, ठीक है? दैट इज अ रिपोर्टिंग ओनली, और वो कितना स्मूथ था अगर आप लोगों ने देखा होगा तो, अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करते तो पूरा चेंज हो जाता था। सो Salesforce also give a feature for the reporting dashboard, ठीक है, जो कि आपका इंटरनेशनल लेवल पे किसी और दूसरे प्रोडक्ट से भी compete कर सकता है आराम से, ठीक है? And these are the clouds. So Salesforce start with the sales and service cloud से, but in last 10 to 15 years they are evolving commerce cloud. So when I say commerce cloud guys, so B2B, B2C, right? So जैसे आप Amazon देखते हैं, ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट देखते हैं, these are the B2C, ठीक है? क्या होता है B2C बताओ? और B2B? हाँ, तो बिजनेस टू कस्टमर वाला साइड आ गया, B2B से डिफरेंट। B2B इज जैसे इंटरनली जो बिजनेस टू बिजनेस में काम होता है, जैसे शॉपिफाई, ये बहुत सारे बिजनेस टू बिजनेस वाले कॉन्सेप्ट चलते हैं, ठीक है? वो बिजनेस तो दोनों के दोनों क्लाउड करता है, तो उनके प्री रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं, आप लाइसेंस लो, आप कॉन्फ़िगर करो, प्रोडक्ट अपलोड करो, आपका रेडी टू यूज है। मे भी हो सकता है आपको 2 साल लग जाए, अगर आप Amazon की साइट बनाओगे कितना साल लग जाएंगे बताओ? 10 लोग की टीम से, किसी को आइडिया है? 10 लोग की टीम में आपके पास कितने टाइम लग जाएगा Amazon बनाने में? मे बी 2 साल, 3 साल, 4 साल, ठीक है? बट अगर आप Salesforce के साथ जाओगे, यू माइट टेक इट मे बी 2-3 मंथ मैक्सिमम। अब वो डिपेंड करता है कितना कॉम्प्लेक्सिटी करना है, बट आपका रेडीली अवेलेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो आपका सारा ऑर्डर करेगा, सारा कार्ट वगैरह का सारा चीज सब कुछ करेगा, ईमेल वगैरह सारा डिस्काउंट सब कुछ मिल जाएगा आपको। सॉरी, शॉपिफाई से बना सकते हो, बट उसमें फिर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। शॉपिफाई तो पूरा आपको बहुत सारा कस्टमाइज करना है, वो शॉपिफाई में बहुत पॉसिबल नहीं है, बट इसमें आप बहुत सारी चीज कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, शॉपिफाई भी जा सकते हो, वी ऑल्सो डू शॉपिफाई, तो मैं पता, ठीक है ना? तो उसके बाद IoT क्लाउड है इनका, एनालिटिक क्लाउड है, ठीक है? कम्युनिटी क्लाउड है। कम्युनिटी इज समथिंग कि आपको पब्लिक वेबसाइट बनानी है, Amazon नहीं बट पब्लिक वेबसाइट बनानी है आपको, तो वो भी ये प्रोवाइड करता है। वी कॉल इट एज एक्सपीरियंस क्लाउड नाउ, ठीक है? ऐप क्लाउड, कोलैबोरेशन, और भी क्लाउड है, मार्केटिंग क्लाउड अगेन। सो व्हाट दे हैव डन, उन्होंने एक कंपनी थी, उन लोगों ने इसको परचेज ही कर लिया, दे आर कॉलिंग मार्केटिंग क्लाउड, हो गया 7-8 साल अभी। सो दे हैव सेल्स क्लाउड, आप सोचो इंसान की जिंदगी में सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग, ठीक है?
they do have B2C, B2B commerce cloud, they do have CPQ revenue cloud they are calling it right now, ठीक है. They have having the education cloud, they are having NPSP cloud, non profit. NGO सबने सुना है NGO? तो जब NGO के साथ आप काम करते हो तो बेसिक नीड्स होते हैं कुछ कुछ, ठीक है. तो उन लोगों ने ऑलरेडी प्रोडक्ट बना के रखा हुआ है, आप जाओ उनके पास, लाइसेंस लो, यूज करना चालू कर दो. कैसे आपको डोनेशन आना है, किसको डोनेशन जाना है, क्या क्या चीजें होती है बेसिक, आप उसके ऊपर अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हो, बट बेसिक नीड्स उन्होंने पूरी करी हुई है, ठीक है. जैसे आप अपना रेडीमेड शर्ट लेके आते हो, आपको अल्टर कराना है ना, करा सकते हो, बट रेडीमेड आप पहन सकते हो, बुरा नहीं लगेगा. अगर आपको फिट नहीं हो रहा है तो ठीक है, इट माइट गो, ठीक है. तो ऐसे इनके बहुत सारे क्लाउड्स हैं. इवन द एजुकेशन क्लाउड आल्सो दे हैव लॉन्च pretty year back, but now they are evolving this year only. So बहुत सारी यूनिवर्सिटी यूज करते हैं, नरसिंह मोजी, एसपीजेन, एजुकेशन क्लाउड यूज करते हैं, ठीक है. तो सारे वर्ड यू नेम इट एंड दे विल बी हैविंग. मैन्युफैक्चरिंग क्लाउड आल्सो दे आर हैविंग. तो बहुत सारे लोगों ने ओपन किए हुए हैं, बहुत सारे ओपन नहीं किए हुए हैं, ठीक है. नाउ द मैजिक स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली गाइस, ठीक है. सब लोग देख पा रहे हैं मेरा स्क्रीन? सो आप लोग अगर जाओगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन हैव योर ओन टेलर अकाउंट फ्री. आपको कोई पैसा नहीं देना, सेल्फ विल वोंट आस्क एनी मनी, ठीक है. तो आपको जो भी चीज करना है वो आपको, इवन सर्वर भी आपको फ्री दे देगा. हाउ यू कैन गेट इट? सो यू कैन नोट इट डाउन गाइस इफ यू वांट. सो देख पा रहे हो आप, developer.salesforce.com साइन अप, ठीक है. जैसे ही कोई भी बंदा, और ऐसा नहीं है एडमिन के लिए अलग है, डेव के लिए अलग है, सबके लिए सेम ही है. तो जब भी आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, और एक ईमेल तो मल्टीपल भी बना सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि 50 बनाने हैं, आप 100 भी बना सकते हो, एक दो ही बहुत है वैसे तो, ठीक है. तो वंस यू रजिस्टर, तो 4-5 मिनट में आपके पास मेल आ जाएगा वेरीफाई करने के लिए, यू कैन लॉग इन टू द सिस्टम. तो जैसे ही आपने किया, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने किया जैसे, ठीक है, तो मेरे पास आ गया लॉगिन. उसके बाद आई विल गो टू द login.salesforce.com. इसके बाद मैं यूजर नेम डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा जो आपने सेट किया होगा उस टाइम पे. आई विल टेक टू मी दिस, ठीक है. सब लोग को सेम दिखेगा, ऐसा नहीं है मैंने पैसे दिए उन लोग को. सो दिस इज अ सेटअप स्क्रीन फॉर द सेल्सफोर्स. तो जो लेफ्ट हैंड पे देख पा रहे हो आप, दीज आर द ऑल सेटअप, ऑब्जेक्ट मैनेजर, ठीक है. These are the tables. They already having pre-existing object, right? Account, contact, lead, और बहुत सारे हैं. हमने कुछ नहीं बनाया, इन लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ. आप भी जब बनाओगे आपको भी मिलेंगे ये सारे. And how it look like? Let's suppose मैं कस्टमर हूं अगर, तो कैसा लगेगा ये मैं दिखाता हूं अभी आपको. और ये सारी ऐप भी ना ये लोग देते हैं. तो डेवलपर के लिए इन लोगों ने सब चीजें फ्री करी हुई हैं, ठीक है. सो द मेन फंडा फॉर सेल्सफोर्स इज दे आर एवरीथिंग वी आर गेनिंग फ्रॉम द स्पेस ओनली. जितना रिकॉर्ड क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है. इसमें 200 MB मिलता है हम लोग को. सो दिस इज समथिंग, दिस इज स्टैंडर्ड व्यू. मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है इसमें, ठीक है. आप भी जब बनाओगे आपको भी कुछ कुछ टेस्ट डेटा मिलेगा जो ऑलरेडी इन्होंने इंसर्ट किया हुआ होगा, ठीक है. सो अगर मैं न्यू पे करता हूँ अकाउंट, यू कैन क्रिएट इट. आपके पास कोई कस्टमर आया, आप उसका अकाउंट बना रहे हो, तो नेम, ये सब चीजें आप डालोगे, सेव कर दोगे, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है गाइस. तो उसमें आप बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हो. आपको चाहिए ये नहीं चाहिए, ये बटन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और फील्ड चाहिए, आपको सब कुछ कर सकते हो उसमें. आपके ऊपर आपको कैसे डिजाइन करना है, ठीक है. नाउ हाउ यू कैन स्टार्ट इट, you need to go with the trader.salesforce.com, ठीक है गाइस. इसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है, साइन अप करना पड़ेगा. एंड दीज आर, यू कैन गो फ्रॉम हियर एंड यू नीड टू चूज योर पाथ, कैरियर पाथ, ठीक है. सो कैरियर पाथ में इफ यू गो डाउन, सो आपके ऊपर आपको क्या करना है, एडमिन में जाना है, डेवलपर में जाना है. बट आई विल रिकमेंड कि आप पहले एडमिन से चालू करो. इनका कोडिंग बहुत अच्छा है, आई वुड रिकमेंड कि आप डेवलपर से चालू भी कर सकते हो, बट एडमिन अगेन उनको आना चाहिए. तो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, तो देखो उन्होंने दिया भी हुआ है यूएस में अगर आप गुड एडमिन हो तो $86,000 मिलेंगे, बट दैट इज फॉर द यूएस, नॉट फॉर द इंडिया मार्केट, ठीक है.
बट दैट इज अगेन फ्री गाइस, ठीक है। trader.salesforce.com पे जाओ, साइन अप करो, यू विल गेट अ फ्री अकाउंट एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देयर, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया है डेवलपर वाला, तो आप जब ट्रेड करोगे तो उसमें स्टेप बाय स्टेप इन्होंने प्लेग्राउंड भी बनाए हुए होंगे सेम, आप जब करोगे आपको पता लगेगा वो। सो आई एम क्लिकिंग ऑन द गेट स्टार्टेड, इन्होंने छोटा सा वीडियो दिया हुआ है एंड यू वोंट बिलीव गाइस, इसमें कोई भी एज का फैक्टर नहीं है। तो यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है। ठीक है, यहां से फिर आप जाओगे टेक ए ट्रेल, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा ट्रेल बनाया हुआ है, दैट इज फॉर यू। तो जब अपना आप अकाउंट बनाओगे तो आपका ये साथ साथ प्रोग्रेस भी ट्रैक करता हो जाएगा। तो दे आर थिंग 11 hours 12 minutes लेफ्ट, इतना बेसिकली इन्होंने बताया है, बट इट माइट टेक 24 hours, ठीक है। तो यहां से इन्होंने चालू किया है, दे आर हैविंग गुड वीडियो, पाथ ओवरव्यू सारा कुछ, और ये ट्रैक भी करते रहते हैं। लेट्स सपोज इफ आई क्लिक ऑन दिस वन, ये वीडियो बनेगा, ठीक है, ये चलेगा, ये पढ़ोगे आप, क्विज वगैरह आएगी, तो मैं भी जैसे ऐसे कर देता हूँ, तो पढ़ लेना होगा, ठीक है। और आपके पॉइंट भी यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। तो दे विल बी हैविंग बैजेस एज वेल, रेंजर बैज, और इनके बहुत सारे कोर्स भी चलते हैं। लेट मी शो यू दैट आल्सो, दिस फॉर द कम्युनिटी। सो बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप, बहुत सारे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और बी ए ट्रेलब्लेजर ऑल्सो, सो यू कैन गो टू trader.salesforce.com एंड यू कैन थोड़ा सा देख सकते हो उसको जाके। एंड सर्टिफिकेशन की बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी एटलीस्ट इट विल टेक 1 year more than that to get a certification on the knowledge, right? और what I was telling, ठीक है। सो these are trade at post, तो ये क्या होता है, इनकी क्विज होती है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो उनके बारे में। अगेन व्हाट वैष्णवी वाज सेइंग, तो सबके पास, सबको पता है ना एप्पल स्टोर, किसी के पास आईफोन होगा तो उसको एप्पल स्टोर पता होगा, या प्ले स्टोर सबको पता है जिसके पास एंड्रॉइड होगा। तो जब मैं सेल्सफोर्स परचेज करता हूँ, राइट, तो मैंने ऑलरेडी सेल्सफोर्स का लाइसेंस परचेज किया, मेरे पास सेल्सफोर्स का इंटरफेस आ गया एज ए कस्टमर, राइट। तो सेल्सफोर्स का अपना ऐप एक्सचेंज है ये वाला। तो बहुत सारी कंपनी ने, जैसे ऐप स्टोर पे आपके होते हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट बना के डाल रखे हैं। पार्टनर विल बी गेटिंग दिस ऐप एक्सचेंज लॉगिन एज वेल, आप भी कर सकते हो उसमें, तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। सो गाइस, दिस इज इट, एंड माय you can put a query on my Twitter and all. So my Twitter handle again Arun SFDC, and my LinkedIn also Arun SFDC. You can very well search. ठीक है? So I think that's all. क्विज में let's see. कोई क्वेश्चन है किसी का अब तक? Salesforce रिलेटेड या कोई और भी कुछ, और भी से रिलेटेड, कोई भी टेक्नोलॉजी से? कोई क्वेश्चन नहीं है गाइस? सब लोगों ने Salesforce पहली बार सुना है क्या सच में? तो सेल्सफोर्स का तो ये लोग ने ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे वेबिनार्स करे हैं, जो स्टूडेंट्स मेंटर्स होते हैं। किसी ने सेल्सफोर्स नहीं सुना था पहले? तो अच्छा, कितने लोग करेंगे घर जाके, मतलब कॉलेज जाके? पाइथन में जिनका इंटरेस्ट है, जावा में जिनके, वो कर सकते हैं। जावा पाइथन इज नॉट बैड, ठीक है, बट अगेन सेल्सफोर्स विल गिव यू द मोर अपॉर्चुनिटी ओनली, दैट्स द ओनली पार्ट। एंड ऑब्वियसली जावा पाइथन तो थोड़ा इजी है, जिन लोगों ने जावा पढ़ेंगे बहुत सारे कलेक्शन होते हैं। सेल्सफोर्स में बहुत सारे कलेक्शन नहीं है, 3 ही कलेक्शन है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट है, तो बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी रेडीमेड मिल रही होती है, बट यू हैव टू प्ले विद योर स्मार्टनेस ओनली। तो कितने लोग करेंगे सेल्सफोर्स जाके घर या कॉलेज? ठीक है, ठीक है, कौन बताएगा इसका आंसर? सेल्सफोर्स एज एन व्हाट? ठीक है, तो मैं पूछ लेता हूँ, सेल्सफोर्स का ओरिजिन क्या है? सेल्सफोर्स इंडिया से बना है, जापान से बना है, चाइना से, अमेरिका से? 1%. Yeah. Yes. India, Salesforce is an cloud-based software company. What is the origin of this? कौन है सेल्सफोर्स का फाउंडर? अभी मैंने बताया था आप लोग। इंडिया किसने बोला? इंडिया, अच्छी बात है, मैं भी जाता हूँ इंडिया से। मैंने सो गए लोग। तो ये यूएस से ही बना हुआ है गाइस, ठीक है।
हाँ, एसएफओ में इसका मेन जो भी, जैसे इंडिया में बेंगलोर है, राइट, बेंगलुरु सब जगह है, बेंगलुरु चलता है, अब तो नोएडा का थोड़ा नाम हो रहा है, तो सेम एसएफओ है वहां पे यूएस में, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। तो वहां पे मैक्सिमम ये आपका फेसबुक से लेकर सारी कंपनी वहीं पे फाउंडेड हुई है। किसने देखी है मूवी, वो सोशल, क्या नाम है बताएगा कोई? तेज बोलो गाइस, किसी ने देखी नहीं है? आप मूवीज वगैरह नहीं देखते हैं? We have so many goodies, right? You give the correct answer, we will provide the goodies. What is the name of founder of the Salesforce? पूरा नाम? Raise the hand first. Yeah. Mark Benioff. Here the one. Yeah. इसका आंसर सही था। कितने का याद आ गया था? दोनों को पीछे दो। Right. So I think that's all, guys. Any question you will be having, okay, you can post it maybe to Vineet sir, or maybe you can post it directly to me on my Twitter or maybe on LinkedIn. I'll happy to answer. ठीक है? And again, Salesforce will be having its own releases every 4 months में इसका release होता है. Online viewers. ठीक है, guys? As I am just in Java and Java development, so how can I relate Java to Salesforce? So Java, yeah, so you can very let's see in Salesforce also the programming language which we are using, that is Apex, okay, that is based on the OOPS concept only. So you can maybe 70-80% syntaxes are same when we come for the classes. So right, आप Java में कैसे लिखते हो? Public class name देते हो, right? You are declaring your variable in the public, private and methods बनाते हो, same way you can do the here. So Apex is all about the OOPS only. In Java, we will be having lots of other vast, is very vast, right? In collection also, we will be having different tree set, different map, but Salesforce में they have simplified. So लोगों ने आपको ना जो layer दिया है, they have simplified that. In the backend, they have lots of things, but आपको उन्होंने तीन ही collection दिए हैं Salesforce में, list, map and set. और set में भी बहुत सारे नहीं है, set simple set है, for an example. So you can very relate with that. And आपका front end में they are using पहले हम लोग HTML यूज करते थे, Visual for Pages, but now they have come with the LWC, Lightning Web Component. That is, if anybody working in React or Angular, okay, they can relate very well. So हम लोग import module करते हैं, सब कुछ JavaScript से है. So for front end JavaScript needed, for back end OOPS concept needed. Maybe .NET Java, that's a different story. Any other question? Any question on online? Yeah. Ask anything. We are here to give your answer. Guys, how many of you have interest in Salesforce? So no questions, no queries. How do you get a job opportunity in the Salesforce? Tell me. Yeah, very good. And what are the way you can upskill your Salesforce? Salesforce providing many courses, like currently I am doing a mix of Salesforce. That's great. Started recently. So, how many months you have achieved? How many months you have achieved in talent? No. Just started 2 days ago. So which trail mixes you are doing? Then mix one. Which one? What? So we do have lots of trail mixes. You can create your own trail mix as well. I provided by Salesforce developer. Okay. Okay. Give some please that at least he has time to Absolutely, come absolutely. into the Salesforce ecosystem. Acha guys, which is not a following is not a CRM. Zoho, HubSpot, Google, Salesforce. Okay, that's great. सभी लोग पता, right? It is not a CRM, right? But somehow in the back end. No. So I think I'm done. Thank you guys for listening me. Okay, in coming to. So Vaishnavi, you can continue then. Great. Okay, guys, now we have Vineet Kumar. Sorry once again, because there are some online users, they are responding back that they are not listening me, right? So again, we have started once again. I am welcoming you all, right? And really, it's a privilege to me in front of you because I am welcoming you all, and I will today
felicitate some of the participants of my quiz, which I conducted this on World Youth Skill Day, and that was organized on 15th of July. You know about the World Youth Skill Day? I think GL members. Do you know about the World Youth Skill Day and what we will do in that day and why we are celebrating that day? Because we have to develop the skill of youth, and you all are the youth, right? You are the power of the nation. If you skill, then our country will grow, right? So that's why we organize this quiz on the World Youth Skill Day, and many students from the different organizations and institutes participated in it, and today I invite all of them to collect their certificates and the prizes. And I am also inviting you because I also organized one of the session of Mr. Arun Goyal over the Salesforce ecosystem. How will you enter into the Salesforce ecosystem? I think you will aware about how to prepare yourself to come into this ecosystem, right? So my best wishes to all of the participants. Whatever the Arun has told you, you have to go with all those steps, skill yourself, right? Once you skill, then no one will deny to give you the opportunity. If you are skilled, then you easily get the job. If you are not skilled, then no one can give you the job, right? So this is the motto. Right today, you have to study hard, and whatever the platform you choose to build your skill, you choose that and go into the Salesforce ecosystem. This is my advice to you, right? So one by one, I will declare the winner of this World Youth Skill Day. So please, just I am announcing the winners of this quiz competition. The first winner, Disha Tiwari. Please. Guys, can we have a huge round of applause, please? So Disha Tiwari won the first prize of this and cash prize of 2,000 and 30% discount of the Learn Out School process. Yeah, please join us. Mohit, please up भी आ जाइए. Yeah, next, Sanjay Syan Mathi is not present here. He's attended online, right? So Syan, I will send your certificate and all the prizes online, right? Then Tushar Nagpal is there? Yeah, please come. Tushar. So he also got the first prize because this quiz having 10 marks out of 10, he got 9. All these, the first prize got 9 marks. That's why, right? Again. So once again, Tushar, please. Yeah, please. Right, thank you. Next, Janak. Second prize, right? Janak got 8 marks, right? So he secured second of this. He got 1,000 coupon, cash and 20% discount on this. Okay, that's great. Vaishnav. Yeah, Vaishnav. Great. He again secured second prize. Again, this is the first, right? He is basically my whole candidate, right? So this is now great. Anyone? So all others, I will distribute or transfer to their banking account, right? Who is there? Parul.
Parul? Yeah, come. So Parul, yeah, he got third prize in that, right? Parul, you got 15% in this, right? And next, Tanisha Rohela, not a. He got third prize, so in that case, we are giving participation. Thank you. Then Shahbaz Ansari, yeah, please come. Yeah, please. Out. Yeah. So, if anyone left in this case, please, Saranjit Tiwari. So, I am just calling all the names who are here. Ranjit Tiwari, Devbrat, Aarti Verma, Sada, Shraddha Rastogi, Akshit, Shubham, Soumya, and Shubham Chauhan. Right. This is all over. Who left? What's your good name? Akshit. You are also participating in the quiz, right? Akshit. Yeah. Just a minute. Please कोई भी दे दो फिर बाद में करेंगे. Akshit, Rathore. Yeah, please. Akshit, please. आपका दोनों. Thank you. Okay. आपका बेटा क्या नाम है? आप में से कोई और भी रह गया? Okay, then. So thank you. So I invite us to give vote of thanks as you have joined us, right? Within a very short span of time, I have just approached to your college, and Dr. Madhu Sharma, director of your institute, just respond me back. I am really very much thankful to her, right? So please convey my best wishes to him, to her, right? Thank you.